demonstration. Those who do not have idea about how to start with AI. How many of you have don't idea about how to start with AI? Is there anyone who do not have much idea about the AI? Those who do not have used AI, very basic. Okay, so let's start with the basic, then we will move further. So basically, we have few standard engines, which again comes under the category of generative AI, or known as the large language model, right? So the first engine, which is in your mobile phone itself, uh, uh, recently, last day only, day before yesterday only, this Meta introduced 4 new models. Okay, so if we start with it, if you go into the Google, and if we search Meta new AI model, right? So this is uh, just they replace a few models, so which is in your mobile only. Either you can start with the new chat in WhatsApp or Facebook. You will get the ring in your WhatsApp, Meta ring, right? Or you can start with the ai.meta.com. Try meta.ai. So this is the first. This is because I'm starting with this. Why it is very handy. It is in your mobile itself. You don't have to go right now. I'm demonstrating you on the uh, web page, but this also you can start with. Let me connect. If I able to connect my mobile, so from where you can start. Let's see. I can able to connect. Okay. Yeah. Wait for 1 minute, 1 or 2. Okay, fine. Okay. Mm, um, it's visible. Yes, sir. My phone is visible or not? Sir, not. Yes, yes. Now it is visible, Yes. right? Okay, so this is my phone, right? Right now it is on your screen. Uh, Fine. Great. It is on your screen. And if I expand, okay, fine. So I'm going on a WhatsApp. This is the first. We will see one by one everyone. Uh, Visible, na? Yes, sir. Yes. Proceed. Yes, sir. Okay, okay, it's visible, right? So I'm right now. I'm selecting WhatsApp. It's a very dangerous to open a personal WhatsApp in front of everyone, but I'm taking risk, not an issue, right? So these are the various chats. This is I'm in a WhatsApp, right? I'm in WhatsApp. Now you can see here a ring is there, which is a Meta ring. Okay, so I'm selecting it. So automatically now I am in Meta AI. You can see I am in Meta AI, right? So what I can do with it, right? So there are prompt is available, right? So I can also start with it. Okay, I am messaging, continuing. Okay, right? Now I can write provide details, provide details about yours.
self and capability. Right? Fine. So it will provide the information, right? कि भाई क्या है, what exactly it is, blah and blah, right? So this is a common. This is basically works on a prompt, which is known as the prompt. How you are giving input. That also we will see what exactly the prompt is. But this is the first step, ready reckoner that you can start with. Now the new facility Meta started is now look at the sparkling icon over here. You can see this is icon. Visible it is, this icon. Yes. Okay, now click on that icon. So which directly from that you can jump into the AI Studio. Right? So this is a new facility provided by the Meta AI. So Meta AI is from the Facebook. So if you have Facebook, Instagram, or WhatsApp installed in your system, you can use this facility. Any of one facility install in your system, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के अंदर आपने फेसबुक का ऐप, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, इनमें से तीन में से कोई भी एक ऐप है आपके पास, तो आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं इस तरह से, बराबर है। तो फिर यहाँ पर AI स्टूडियो के अंदर आपको अलग अलग फैसिलिटी मिलती है, राइट। यहाँ पे मान लीजिए अभी बहुत क्रेज है इमेज जनरेटर का, तो आप यहाँ पे इमेज जनरेटर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो देन यू टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे क्रिएट, से फॉर एग्जांपल पेंसिल, क्रिएट अ पेंसिल line, simple detailing image of the classroom with white background, right? Then simply I click yes. So it start giving me the outputs, right? So it will take time. Yes. So fantastic. कोई तो बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. फ्रेंड्स सर So this इमोजीज is, नहीं देख पा रहे, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस हाँ, so this is a simple way to start with the AI. Now it's up to, we will come on the prompting, right? The input which I am giving, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो किस तरह से, उसमें क्या क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई जो मैंने इनपुट दिया पे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्रिएट पेंसिल लाइन सिंपल डिटेलिंग इमेज ऑफ द क्लासरूम विथ व्हाइट बैकग्राउंड, बराबर है। तो ये इस तरह से आया। अब ये मैंने किस में किया, तो भाई मेटा आया में अलग इंजन, अलग आप फैसिलिटी यूज करेंगे तो अलग आएगा, बराबर है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है वो है आपके मोबाइल के अंदर आपने अगर ये चैट जीपीटी को इंस्टॉल किया है, ये ऐप है चैट जीपीटी, उसका आइकॉन भी आप देख लीजिए, दिस इज मोस्ट फेमस ऐप चैट जीपीटी, बराबर है। तो वो आप दूसरा ऑप्शन है, बराबर। अब यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये मेरा पेड वर्जन है, प्रोबेबली आपको उसका इंटरफेस अलग मिलेगा अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई जब भी आप चैट जीपीटी का उपयोग करें, मेरा आईफोन है, आपके पास एंड्रॉइड हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि चैट जीपीटी का आइकॉन है वो व्हाइट कलर का है, ग्रीन कलर का आइकॉन जो है वो एक फॉल्स एप्लीकेशन है। तो आप जब आप चैट जीपीटी आपके मोबाइल में इंस्टॉल करें तो उसका जो आइकॉन है ये व्हाइट होना चाहिए, और वो ओपन एआई कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि ओपन एआई इज अ कंपनी, दे आर ऑफरिंग चैट जीपीटी फैसिलिटी, बहुत सारी अलग फैसिलिटी भी देती है, चैट जीपीटी उसमें से एक है। ये चैट बॉट है, इसको बोलते हैं एआई चैट बॉट। जो भी हम लोग लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं वो सब चैट बॉट की कैटेगरी में आता है।
तो हम लोगों ने जो मेटा का भी यूज किया वो फेसबुक या मेटा कंपनी का है, वो भी चैटबॉट है और ये भी चैटबॉट है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी हम लोग जब यूज करेंगे तो आपको देखना ये है कि भाई वो व्हाइट कलर का आइकॉन होना चाहिए और ओपन एआई का है, दूसरा जो है वो चैट जीपीटी का नहीं है। अब जब मैं इस चैट जीपीटी के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे भी देना तो आपको प्रॉम्प्ट ही है, बराबर है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपको यहाँ पे एक ऊपर कुछ लिखा मिला है, ये आप किसी को पता है ये क्या है? चैट जीपीटी 4o। एनीबडी हैव आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो ये है मॉडल, है चैट जीपीटी का मॉडल है अलग अलग। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इतने सारे, मेरा पेड वर्जन है तो मुझे इतने सारे मॉडल्स है वो यूज करने को मिल रहे हैं यहाँ पे। मोर मॉडल्स, तो यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी 4o मिनी, चैट जीपीटी 4 और बाकी के, ये मैं वापस क्लिक करता हूँ, देखिए 4o है तो ओ का मतलब यहाँ पे ओमनी है, ओ का मतलब है यहाँ पे ओमनी है। तो जब भी आप चैट जीपीटी या कोई भी आप, हम लोग अलग अलग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने फेसबुक का देखा तो फेसबुक के 4 मॉडल है, उसमें से 2 अभी एक्टिव है, 2 अगले मंथ पे आएंगे, बराबर। तो आप जब उसको यूज करें तो आपको देखना है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। मॉडल का काम ये होता है कि दे आर स्पेसिफिकली ट्रेन, वो एक स्पेशल काम के लिए ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे आपको मेजोरिटी, आप जब फ्री एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगा GPT-4o। GPT-4o का मतलब है ओमनी, मतलब वो सब काम कर सकता है, इमेज जनरेट करेगा, कंटेंट बनाएगा, आपके प्रश्न का जवाब देगा, सब करेगा। दूसरा है यहाँ पे 4o विद शेड्यूल्ड टास्क, इट इज जस्ट लाइक अ एजेंट। आप उसको एक, ये शायद पेड में ही होगा, फ्री में है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये शेड्यूलिंग में भी आपका काम करेगा। जब आप उसको काम दे दो तो वो अपने समय से वो काम करके आपको वापस देगा, तो जस्ट लाइक एन एजेंट। अब इसका एजेंट का जो प्राइस है, अभी इसमें बीटा है, लेकिन इसका जो एजेंट का प्राइस है वो $200 पर मंथ है। मेरी जो ये फैसिलिटी है वो $20 पर मंथ है। आपको फ्री में हो, कुछ मॉडल्स है वो आपको फ्री में मिलेंगे। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर मॉडल का काम पर्टिकुलर होता है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज मॉडल में रीजनिंग मॉडल यूज करके कुछ लैंग्वेज का काम कर रहे हैं तो ठीक से जवाब नहीं देगा, इसीलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये अभी नया आया है 4.5, वो स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च पर्पस है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, कोडिंग के लिए है, रिसर्च एनालिसिस के लिए है। अगर इसके अंदर आपने कुछ लैंग्वेज का प्रश्न पूछा तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसी तरह से डिजाइन नहीं है। तो जब भी आप कोई भी ये सब फैसिलिटी देखे तो आपको ये देखना है कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि भाई वो है कहाँ पर, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, बराबर है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे आया, देन आप बेटा को ही पूछ सकते हो, चैट जीपीटी को ही पूछ, चलिए चैट जीपीटी को ही पूछते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को ठीक है, ये मेरा ही लॉगिन है ना, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, चैट जीपीटी में काम करने के लिए पहले आपको ओपन एआई में जाना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पे एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन है तो यहाँ चैट जीपीटी है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी, ये मेरा फ्री अकाउंट है, चलिए मैं फ्री अकाउंट में ही हूँ तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास यही है, तो यहाँ पे मॉडल का कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, पेड में मिलता है। तो यहाँ पे जो फ्री में मिलता है वही हमें यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग इसको पूछ सकते हैं कि देखिए है, तो ये कौन सा मॉडल किसके लिए काम करेगा वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। और उसका एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा यहाँ से।
बराबर है। अब ये यहां से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप पूछेंगे वो उसका जवाब देगा। तो दिस इज वन अनदर engine, big engine after Meta. This is one more facility. तीसरा है, अगर आपको लाइव डेटा के साथ काम करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा जेमिनी में। तो आपको जेमिनी में जाना पड़ेगा, और जेमिनी के अंदर जब आप यहाँ पे देखिए लिखा है टू फ्लैश, ये देखिए, अब देखिए ये सब आपको पता रहना चाहिए कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट देना है। तो दिस इज अ फर्स्ट लर्निंग। तो भाई आप जो भी फैसिलिटी यूज कर रहे हैं एआई की, तो वो एआई की फैसिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि आप मॉडल उसका कौन सा यूज कर रहे हो, क्योंकि ये अलग अलग इसका फैसिलिटी होती है। यहाँ पे इसको जेमिनी को भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स like 2 dot like 2.0 less and other पावणे पाचला नाही का? 5. right। so तो ये आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा है, की कैरेक्टरिस्टिक। Gemini 2. Flash is engineered for speed and efficiency, making it suitable for tasks requiring low latency and high performance. It's considered a workhorse model for everyday tasks। तो ये चलेगा, हमारे लिए काफी है, 2. Flash है वो चलेगा, बराबर। तो ये पर आपको कुछ थिंकिंग उससे ज्यादा 2.5 एक्सपेरिमेंटल ये भी कर सकते हो, तो उसमें जवाब आपको अलग अलग मिलेगी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच मॉडल, आप कौन सा मॉडल को आप यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे देना तो आपको प्रॉम्प्ट ही है, यहाँ पे हम लोग देंगे, यहाँ पे जो देंगे उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का हमें पता रहना चाहिए कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए चलिए एक थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि भाई मेरे पास है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ है प्रॉम्प्ट का कुछ है, तो आपको वहीं से चालू करते हैं, तो विच इज अ गुड एक्सरसाइज। एक मिनट ना, मैं ढूंढ लूं भाई कहाँ पर है प्रॉम्प्ट। हाँ, बराबर। प्रॉम्प्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं और प्रॉम्प्ट का काम क्या है। तो आपको जब भी कोई भी लैंग्वेज मॉडल में काम करना है, कोई भी जनरेटिव एआई में आपको काम करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रॉम्प्ट। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। गूगलिंग करेंगे बहुत सारी किताबें आपको मिलेगी, बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, पर यहाँ पे कंसाइज गाइड मैंने आपको आपके सामने रखी है। फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग प्रॉम्प्ट देके, पे आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट यू वांट फ्रॉम द चैटबॉट, आपको चैटबॉट से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक आपको पता रहना चाहिए, तो विच इज नोन एज अ क्लैरिटी, राइट। सेकंड है कंटेक्स्ट। आपका कंटेक्स्ट क्या है, आप कौन से संदर्भ में उससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। दूसरा है प्रिसाइज, यू मस्ट बी प्रिसाइज। ये तो बहुत सारी चीजें देगा आपको, जब भी देखे हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, पर आपको क्या चाहिए ये प्रिसीजन आपको उसको देना पड़ेगा। फिर है रोल प्ले, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं इसको पूछूंगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बराबर है। तो फिर ये क्या करेगा,
से फॉर एग्जांपल मैं उसको बताऊंगा कि प्रिपेयर ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन सच ए सच टॉपिक, एक टॉपिक के ऊपर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दीजिए, तो वो बना के देगा। पर मैं उसको ये बोलूं कि बीइंग ए 10-year old प्रोफेसर, experienced professor, kindly prepare a PowerPoint presentation on particular subject for first year students, right? So मैंने चैट जीपीटी को एक रोल दिया है कि भाई आपको किस तरह से सोचना है, तो भाई एक सीनियर प्रोफेसर की तरह सोचना है, और सीनियर प्रोफेसर की सोच के आपको फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना है, राइट? तो उसके लिए वो आपको एक रिफाइंड आउटपुट मिलेगा, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मान लीजिए टोन, कि आप जब उसको पूछते हैं तो उसका टोन क्या है। टोन का मतलब ये है कि मुझे ये प्रेजेंटेशन एकेडमिक टोन में चाहिए, मुझे सोशल मीडिया टोन में चाहिए, मुझे कॉर्पोरेट टोन में चाहिए, कौन सा टोन में मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको वो आंसर उसी तरह मिलेगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप कोई भी, आप यहाँ से 50 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 100 एप्लीकेशन टूल्स एआई के डाउनलोड करो, जो भी करो, आपको ये पता नहीं है तो आप कोई भी टूल में से काम नहीं कर पाओगे, उससे आप अच्छा काम ले नहीं पाओगे। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया दैट हाउ यू कैन वर्क विद द चैटबॉट्स। आपके पास प्रॉम्प्टिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अभी जो सीखने का है, जो अपस्किलिंग है, वो ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में किलो वी आर कैपेबल इनफ टू टॉक विद द ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसमें पावरफुल है, उसमें हम समझ सकते हैं, हमारी नहीं कई बात भी सामने वाला समझ जाता है। माय वाइफ इज ओनली जस्ट स्टेयरिंग आइज, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई साहब अब कुछ नहीं बोलना है। अब ये यहाँ पे नहीं चलेगा ना, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। मैं इसको आंख दिखाऊंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, तो उसको मुझे समझाना पड़ेगा बिटवीन द लाइन। मेरी वाइफ मेरे को पूछे, मैं उसको बोल रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ, खाना डिनर के बाद मैं बोलूंगा मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वो मुझे बोलेगी आप बाहर जा रहे हो, तो वो टोन से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ में जो क्वेश्चन में ना है। हाँ बोलिए मैम। हाँ भाई साहब बोलिए, किसी ने है, अच्छा भूल से हो गया होगा। तो वो मुझे पूछ रही है, उसमें वो टोन को मुझे समझना है बिटवीन द लाइंस कि भाई ये हाँ जो क्वेश्चन है उसमें मुझे जाना नहीं है। अब ये यहाँ पे नहीं चलेगा, बिटवीन द लाइंस वाली चीज यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप उसको बताना पड़ेगा व्हाट यू वांट। यहाँ पे अपने आप को हार्ट खोलना पड़ेगा, और वो हार्ट खोल के इससे आप बात करनी पड़ेगी, तभी ये भाई साहब समझ पाएंगे, और तभी आपको इनपुट दे पाएंगे और आउटपुट दे पाएंगे। अब इसके साथ आप वाला जो खेल खेलोगे तो ये आउटपुट कुछ देगा नहीं, ये आपको कुछ बोलेगा, और फिर आप जैसे चैट में बात करते हो, बोले ठीक है, तब बोले तो ये को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन विच वे यू आर टॉकिंग विद द मशीन्स। ये मशीन से, मशीन के साथ बात करने के लिए उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको सीखनी पड़ेगी, और दैट एरिया इज नोन एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट। तो रिसर्च जनरल प्रॉम्प्ट, हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट है वो जनरल प्रॉम्प्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे दिए है। कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द मेन थियरीज एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू, फिर आपका टॉपिक का नाम, तो फिर वो आपको दिस आर द सिंपल प्रॉम्प्ट है, जनरल प्रॉम्प्ट है, बराबर है कि भाई आपकी जो मेन थियरी जो भी है टॉपिक की, उसकी एक ओवरव्यू आपको मिलेगी। देन व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन योर रिसर्च फील्ड। हाँ, ये जो क्वेश्चंस है ये वाला मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसलिए इसको मैं कॉपी कर सकूँ। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन योर रिसर्च, तो ये अगर ऐसा कुछ आपको यूज करना है तो जेमिनी में दीजिए। चैट जीपीटी का उपयोग मत करें, क्योंकि चैट जीपीटी के पास रिसेंट डेटा नहीं है। जेमिनी अपना गूगल का डेटा यूज करेगा करंट। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे जाके जेमिनी को देता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V। व्हाट आर द
and in एक टाइनी एमएल मशीन लर्निंग हमारा एक टॉपिक है, उसमें मैं यहाँ पे देता हूँ, बराबर। तो ये मुझे करंट डिटेल्स इसकी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट देना ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरा नेट इंटरनेट से आपको पूरी चीजें लाके देगा। तो द स्ट्रक्चरिंग, आंसर, रिफाइनिंग एंड रिव्यू सब कुछ मिलेगा। देखिए राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉम्प्ट एंड मैं इसको क्या करूंगा, हाँ ये मेरे बिना बताए मुझे मिल गए यहाँ पे सोर्सेस एंड रिलेटेड कंटेंट। सो दिस इज मोर पावरफुल। चलिए इसी को हम लोग चैट जीपीटी को देते हैं। उसने कुछ सोचा नहीं, धड़ 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 दे दिया। देखिए देखो दोनों टूल है, दोनों में आपको अलग अलग आंसर मिलेगी, दोनों में अलग अलग। इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। एंड देन आई हैव टू राइट अनदर प्रॉम्प्ट, प्रोवाइड रेफरेंसेस आल्सो, बराबर है। तो ये आपको देखना है कि कौन सा टूल किसके लिए यूज करना है। तो ये आपको इसी की देखना है। फिर यहाँ पे है, कैन यू सजेस्ट सम की स्टडीज ऑफ रिसर्च पेपर ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, बराबर। कुछ स्पेसिफिक रिसर्च टूल्स भी अवेलेबल है। अगर आपको रिसर्च में ही स्पेसिफिक काम करना है तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। टॉप 10 रिसर्च टूल्स है, उसमें अगर हम एक देखें तो ये वाला सबसे अच्छा है। ये सर्च इंजन है, तो ये आपको यूज करना चाहिए रिसर्च के लिए। इंस्टेड ऑफ गूगल, गो विथ दिस Perplexity. So this is the best for the research questions. यहाँ पे आप पूछेंगे सेम क्वेश्चंस में, यहाँ पे अगर देता हूँ so now you can see this information will come in a different way, right? You can see. But sir, which data is reliable? This is most important. So that's why जब आप जेमिनी में यूज करते हो तो जेमिनी में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो लाइव डेटा की मिलती है। यहाँ सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो आपको एनालिसिस करके मिलेगी। Okay. ये आपको एनालिसिस करके मिलेगी इंफॉर्मेशन, बराबर। तो आपको जब आप इसका आउटपुट देखें तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई ये आउटपुट है वो सही है या नहीं है। सो माय एडवाइस इज दैट व्हेनेवर यू सर्च एनीथिंग, आप कुछ नया सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको डबल चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर आल्सो नॉट श्योर द आउटपुट व्हिच यू आर रिसीविंग इज आल्सो ट्रू और नॉट, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो जो टॉपिक में आपको पता है, यू आर श्योर, वही आपको यहाँ पे काम करना है। Yes. This is the best way to work with any chat bot. जो टॉपिक मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि भाई ये मेरा टॉपिक है, तो इसने जो आउटपुट दिया है वो सही है, लिंक दी, रेफरेंस दी, वो सही है नहीं है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसने मेरे को 28 सोर्स दिए,
बराबर है। तो आपको कंटेंट विद सोर्स चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको टूल यूज करना है, हम्म, बराबर है। तो ये आपको समझ में लेना चाहिए कि जब आप नई कंटेंट बना रहे हो तो वो कंटेंट का पता आपको होना चाहिए। यू आर द इंटरप्रेटर ऑफ द कंटेंट, दैट आपको जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट सही है या नहीं है, क्योंकि एवरी मॉडल ऑफ एआई इज ट्रेन ऑन सर्टेन डेटा सेट। जैसे ग्रोक एआई है, ग्रोक एआई का एक स्पेशलिटी है, आप जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में वो जवाब देगा। देखते चलिए, वो एक टिपिकल मॉडल है, बराबर है। उसको आप जिस तरह से बात करेंगे उसी तरह से वो बात करेगा आपको। यहाँ पे मैं इसको कहूंगा, हे बीडू कैसे हो, क्या नया आज है। अरे बीडू, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है। यस यस। आज कुछ नया नहीं, बस यही एआई का काम चालू है। एक एआई ने मुझे बनाया है तो थोड़ी सी यूनिवर्सिटी समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू बता क्या चल रहा है तेरे वहाँ, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज या बस ऐसे ही चिल। तो चलिए लिखते ऐसे ही चिल, बराबर। तो हाँ 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 ठीक है बीडू, चिल मोड ऑन कभी कभी, बराबर। अब ये जो है ना, ये मैं ये जेमिनी को देता हूँ। चलिए वो क्या आंसर देता है वो हम देखते हैं। इसको मैं नई नई चैट ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको दे देता हूँ। इसने भी ये भी सीख गया, देखिए एकदम चकास बीडू, अपन फर्स्ट क्लास है। आज मंगलवार है, अप्रैल 2025। ठीक है, हाँ बोलिए सर। बराबर है। तो आप किस तरह से उससे बात करते हो वो आपको अकॉर्डिंगली मॉडल यू हैव टू सिलेक्ट, राइट। तो ये जनरल पर्पस है। ये स्लाइड में आपको ये दे दूंगा, तो देन यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ इट एंड यू कैन मॉडिफाई द प्रॉम्प्ट, सर इसका राइट। मतलब अपने को पहले प्रिपरेशन करना ज़रूरी है ना? मतलब पढ़ाई करना ज़रूरी है ये सारे यस टूल्स यस यूज़ करने यस, से पहले? हाँ हाँ। यस। आप जो भी आप टूल यूज कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई आप जो आउटपुट आ रहा है वो सही है या नहीं, जी। वो हमें पता होना चाहिए, है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द चैट जीपीटीज रेफरेंसेस आर फॉल्स। हुँ। आई पर्सनली टेस्टेड, तो वो आपको पता रहना चाहिए कि भाई वो आपको किस तरह से आउटपुट मिलता है। लेकिन कुछ चीजें देखिए, ये जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ पावर पॉइंट का वर्जन, तो उसमें हमारा जो डे टू डे का काम है, मान लीजिए पावर पॉइंट बनाना है, तो ये सब इनबिल्ट है। तो आपको कोई और टूल जैसे गामा है, यहाँ पे बता दूं, लोग बोलेंगे कि सर आप बातें किए जा रहे हैं, हमारे फायदे का तो कुछ सोचिए, आप अपने फायदे का बात बता रहे हो। हाँ, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ टूल्स आर अवेलेबल। उसको हम लोग पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सीधा आ जाता हूँ, ये सब कथा बोध कर लिया, हमें कथा नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, बराबर है, मैं अपनी जगह को चेंज कर लेता हूँ, तो आपको भी लगना चाहिए कि हमें कुछ मिला। तो देखिए ये इतनी सारी टॉप ब्रांडेड कंपनी है, उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है एआई में। अब एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। अब उसमें से हमारे काम की कौन सी चीज है, हमारे काम की कौन सी चीज है, क्योंकि एवरी डे सो मेनी एप्लीकेशंस आर कमिंग इनटू द मार्केट, बराबर। अब मान लीजिए ये पूरा सर्कल है कि ये टेक्स्ट के लिए ये टूल है, इमेज के लिए ये टूल है, उसके लिए टूल है। तो मैं आपको बताऊंगा पे आपको कहाँ से शुरू करना है। आप कहीं से भी शुरू करना है तो वो भी मैं आपको रिसोर्सेज आपको दे दूं, क्योंकि
बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे रिपोजिटरी, आपको टूल कहाँ से मिलेगी, फ्री टूल कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे काम करेंगे, तो ये सब चीजें है। मान लीजिए ये एक वेबसाइट है futurepedia.io। देखिए 3 घंटे में मैं सब कुछ आपको नहीं सिखा सकता हूँ। एक एक टूल को लेने के लिए 3 घंटे चाहिए कि भाई आपको, हमें चैट जीपीटी में काम करना है तो चैट जीपीटी का जो बेसिक्स टू प्रो वर्जन यूज करना है तो उसके अलग अलग प्रॉम्प्ट उसमें क्राफ्ट करना है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक ए क्राफ्टिंग ए टेक्स्ट। हमारी टेक्स्ट एबिलिटी कितनी है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, राइट। क्योंकि इमेज के जो प्रॉम्प्ट देते हैं, मैं आपको एक बताऊं, मेरा प्रो वर्जन है इसमें है, अच्छा मोबाइल में है तो मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ, हमारा मोबाइल कनेक्टेड है कि नहीं। तो चलिए, तो क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर मेरा प्रो वर्जन है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं, आज सबको आपके लिए मैंने एक्सरसाइज बनाई थी तो बताता हूँ। चलिए कितना काम कितना आसान हो जाता है कभी कभी, मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा यहाँ पे एक मैंने, देखिए मैंने एक इजी सा प्रॉम्प्ट दिया है, देखिए यहाँ पे, क्रिएट एन इमेज ऑफ सिंपल पेंसिल, minimum line style, picture with white background, a male professor walking towards classroom, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये इमेज जनरेट करके दी उसने फटाफट। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एंटरिंग इनटू द क्लासरूम। तो ये भाई साहब ये देखिए, अब यहाँ ये इमेज में से यहाँ पे गए, बराबर। फिर मैंने लिखा इनसाइड द क्लासरूम, तो अभी वो क्लासरूम के अंदर है। देन मैंने लिखा लुकिंग टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, तो अभी स्टूडेंट्स, अब देखिए पोस्टर चेंज हो गया इसका, है ना। फिर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया व्यू फ्रॉम द लास्ट बेंच, व्यू फ्रॉम द लास्ट बेंच, प्रोफेसर ग्रीटिंग टू स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग, ये देखिए, राइट। एंड देन प्रोफेसर इज एक्सप्लेनिंग एआई एल्गोरिथम्स, board is displaying names of ML algorithms. Now see the magic. मैंने एल्गोरिथम स्पेसिफाई नहीं किए हैं, बराबर है, तो भी उसने ले लिए, लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, के मींस, न्यूरल नेटवर्क्स, these are the ML algorithms, right? और फिर मैंने दिया एक्सप्लेनिंग लीनियर रिग्रेशन, तो देखिए, then I had given a prompt, now combine all images like comic strip, you can see the everything in one direction, so I can generate my comic book if I want to create a explanatory book, a visual book, because I working so many things in a visual, मुझे ये शौक है, मेरा पैशन है ड्राइंग करना, विजुअल्स बनाना, विजुअल्स मेटाफर पे काम करना, तो मैं इस डायरेक्शन में काम करता हूँ। आपका अलग फोटो है तो आप उसके अलग तरीके से काम ले सकते हैं। देन अब यहाँ पे देखिए क्रिएट ए सिंगल इमेज, अब देखिए यहाँ से मैंने एक्सरसाइज की है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने कंटिन्यूअस सिंगल प्रॉम्प्ट दिए, देखना मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट किए, यहाँ पर मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने ये चीज ब्रेक कर दी, ये जो कंटिन्यूअस आ रहा था ना, अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता एक्सप्लेनिंग लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद मैं लिखता एक्सप्लेनिंग अ के-नियर मेथड, तो मुझे वही यही प्रॉम्प्ट में वो मिलता, पर मैंने यहाँ पे वो सीक्वेंस ब्रेक की, मैंने सीक्वेंस ब्रेक की, मैंने क्या किया, नाउ कंबाइन ऑल द इमेजेस लाइक कॉमिक स्ट्रिप। देन मैंने यहाँ पे दिया create single image for logistic regression, decision tree, k-near neighbor. So instead of this picture, instead of this image, I got this image, you can see. Then वापस मुझे उसको देना पड़ा, प्रोफेसर इज एक्सप्लेनिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसने मुझे स्टाइल चेंज हो गई। सो यू हैव टू क्रिएट अ फ्लो, जस्ट लाइक ए थ्रेड, तो आप किस तरह से उसके पास काम कर रहे हैं, आप इसको किस तरह से प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे फिर मैंने वापस उसको वही फ्लो दिया। देखिए प्रोफेसर इज एक्सप्लेनिंग के नियर नेबरिंग, तो मुझे दोनों इमेजेस जस्ट लाइक सेम टू सेम मिली, बराबर है। अब यहाँ पे जो की प्रॉम्प्ट है, मेरा की प्रॉम्प्ट है वो ये है, कौन सा, ये वाला, क्रिएट एन इमेज ऑफ सिंपल पेंसिल मिनिमम लाइन स्टाइल। अब मैं इसको चेंज करूं तो अलग रिजल्ट आएगा। तो आपको यू मस्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट, बराबर। तो उस तरह से आप इसके पास से काम कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, यू आर द मास्टर ऑफ इट, बराबर है। तो ये अब किस तरह से, मुझे ऐसे ही रात को सपने में ये सब कुछ नहीं आता है, मैं भी बहुत सारा कुछ देखते रहता हूँ, यहाँ से सीखता हूँ, वहां से सीखता हूँ। तो ये सब कहाँ पर है, तो सर चलिए वो देखते हैं। हाँ हाँ मैम, सर आपने ये टास्क पहले करके रखा था हमें समझाने के लिए, तो वो आपको समझाने के, सेव कैसे किया आपने सर? ये सेव किस में ये हुआ? तो ये हाँ, ये मैं जो भी काम करूंगा ना, आप भी जो भी काम करेंगे ना, वो यहाँ पे हिस्ट्री में ये सब रहेगा, ओके आपका काम यहीं पे रहेगा। जी बताता हूँ मैं आपको। आप जो भी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब चलिए, ये अभी मैंने जो काम किया ना, ये मेरा फ्री वर्जन नहीं है, तो मैं अपनी जगह बदल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं जो भी करूंगा ना, ये मेरी साइड लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये हिस्ट्री क्रिएट होती है। ओके अभी मैं एक नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे न्यू प्रॉम्प्ट करता हूँ, हम्म, बराबर है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉम्प्ट करता हूँ। तो देखिए नई हिस्ट्री यहाँ पे हो गई। Yes. तो ये रहेगा यहाँ पर, वो यहाँ पे रहेगा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। Yes. तो अभी देखो ये मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, उसने आउटपुट दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ, ये है प्रेजेंटेशन आउटलाइन ऑन टॉपिक बेसिक्स ऑफ AI like you are senior professor of computer science, and this presentation outline is for 6th semester engineering students, right? Right? अब ये अलग प्रॉम्प्ट है, वहां पे मैं, यहाँ पे मैंने इसको रोल प्ले किया है, तो देखिए आउटपुट अलग मिलेगा। ओपनिंग रिमार्क्स, डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ AI, कोर डिसिप्लिन विद इन AI, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया गया है। हाउ AI वर्क्स, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ AI, बराबर है, ये अलग मिलेगा, राइट। तो आप प्रॉम्प्ट किस तरह से देते हैं उसके ऊपर ये है, बराबर है। तो ये आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ये भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन सिंपल टर्म्स विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो सिंपल टर्म से मुझे समझाओ। आप ये भी कह सकते हो कि आई एम वर्किंग इन दिस एरिया, माय वर्क इज दिस। तो आप एक उसको कंटेक्स्ट दे सकते हो, बैकग्राउंड दे सकते हो, तो भाई मुझे इसके लिए चाहिए, और फिर मुझे उसके एग्जांपल के साथ मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दीजिए, देन इट विल प्रोवाइड यू द आउटपुट, राइट। तो उस तरह से आपको मिलेगा। देखिए, तो आपको किसी को पूछना नहीं, इसको ही पूछना है, तो वो आपको यहाँ पे देखा है ना, रोल, टास्क, फॉर्मेट, टोन ऑफ ऑडियंस, तो सब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब चलिए ये सब सीखना है, आपको सीखना है, तो यहाँ पे चले जाइए फ्यूचर
pedia.io, ये एक रिपोजिटरी है, बेस्ट रिपोजिटरी है। यहाँ पे मैंने अकाउंट मुफ्त में खुलवाया है, आप भी अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और यहाँ पे आपको टूल्स भी मिलेंगे। दूसरी बार आपको मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। तो आप आराम से इसको आराम से 1 महीना लगेगा आपको ये पूरा सब कुछ देखने के लिए, और उससे भी ज्यादा। इतना सारा कुछ है। मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ फर्स्ट AI टूल्स, मैं ये वेबसाइट आपको भेज देता हूँ, चेट बॉक्स के अंदर ही रख देता हूँ। यहाँ पे ये चेट बॉक्स में मैं कॉपी कर देता हूँ, इसलिए फिर ये मैडम को भी मिल जाएगा, आप सबको भी मिल जाएगा। चलिए मैंने डाला फ्यूचर, यहाँ चैट बॉट में से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी देखिए AI टूल्स है, तो मैं AI टूल्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए कितना वाव, जिन्होंने बनाया है बेस्ट बनाया है। अब AI प्रोडक्टिविटी टूल बराबर, तो यहाँ पे आप शो करेंगे। अभी मुझे फीडबैक नहीं देना है, चलिए एक्सट्रीमली लाइकली दे देता हूँ, उसको भी मजा आए। ठीक है चलिए बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंटेशन के टूल्स मुझे चाहिए, यहाँ पे 29 है, तो यहाँ देखिए पल्स AI, टॉम, सिंप्लीफाइड, पावर मोड AI, ये फिर आपको एक एक चेक करना पड़ेगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, बराबर पैसे वाला है नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको रिपोजिटरी मिलेगा, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनहांसर, AI टेक्स्ट जनरेटर, प्रॉम्प्ट जनरेटर। आपको सीखना नहीं है तो आप यहाँ पे चले जाइए, तो ये प्रॉम्प्टिमाइज कर देगा, आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा, बराबर है। तो वो भी हो सकता है, बिकम एन AI प्रो विथ 1 क्लिक, बराबर है। तो साइन अप, सब में वो डेटा तो आपको मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, इतने अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये जो है, मतलब जितने टूल्स उतनी कथा, जितने टूल्स उतनी अलग अलग कथा। पर आपको जो भी टूल्स चाहिए तो यहाँ पे ये रिपोजिटरी है पूरी, सब टूल्स आपको मिलेगी। देखिए सब कैटेगरी में है, सब कैटेगरी में है, सर बराबर है। स्क्रीन नहीं दिख रहे। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? No, it is visible. It is visible. जिनको नहीं दिख रही है डिसकनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाओ, वापस हो जाएगा। मैं बोला मैं नहीं, ये क्या हुआ? ठीक है चलिए, तो ये AI टूल्स कैटेगरी में है। फिर आता है यहाँ पे रिसोर्सेज, दिस इज बेस्ट, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत बहुत कुछ है, इसमें से आप अपने टाइम पे देखना। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है AI ट्यूटोरियल्स, ऑसम कैटेगरी है। आपको जो भी सीखना है, जीवानी को भूल जाइए, जीवानी की ई वानी को भूल जाइए, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए हाउ टू क्रिएट एंड यूज कस्टम जीपीटी, चैट जीपीटी का जिनके पास पेड वर्जन है उनको चैट जीपीटी किस तरह तो वो मिलेगा। हाउ टू क्रिएट शॉर्ट फिल्म विथ मिड जर्नी, ये एक ग्राफिकल टूल्स है, बराबर है। हाउ टू यूज द बेस्ट AI वीडियो जनरेटर ऑफ 2024, कौन करता है इतना। हाउ टू क्रिएट एन ऐप विदाउट, फिर मैडम हमें बुलाना हो ये, फिर आप ये सब, चलो जीवानी साहब को नहीं बुलाना है नहीं सर, आपसे पढ़ने के बाद फिर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं रहता ना। फिर आपने अगर थोड़ा-सा पढ़ा लिया तो फिर हम आगे का एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मजाक कर रहा हूँ मैं, but this is a good repository to start with, इसीलिए मैंने बेसिक से चालू किया। मैं आप सबको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हो, क्योंकि दिस इज अ लर्निंग कर्व, बराबर। कि आपको लर्निंग कर्व एग्जैक्ट मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। तो ये पूरा आपको एक ट्रेनिंग मिलता है, एकदम बढ़िया। अब स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपके हिसाब से आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। अब दूसरा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर आपको चाहिए, स्ट्रक्चर वे में सीखना है तो माई स्मार्ट लर्निंग ऐसा कुछ है। हाँ ये नहीं है, माई ग्रेट लर्निंग, ये वेबसाइट, ये बेस्ट वेबसाइट है। मैं इस ये भी नहीं है, करिकुलम
ये वेबसाइट भी नहीं है, greatlearning.in नहीं है, माय ग्रेट लर्निंग, ये वेबसाइट है। इसकी मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल सी करके आपकी इसमें डाल देता हूँ, बराबर है। हाँ, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बराबर है। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड में भूल गया हूँ, पर यहाँ पे आप एक्सप्लोर प्रोग्राम्स आप जाएंगे तो यहाँ पे एआई एंड मशीन लर्निंग है, तो यहाँ पे अलग अलग है। जनरेटिव एआई में आपको जाना है और यहाँ से आपको कोई भी कोर्स है वो सिलेक्ट करना है। दिस इज अ स्ट्रक्चर जर्नी। फिर दूसरा भी है, आप यहाँ पे जा सकते हो, एडेक्स में जा सकते हो। बराबर है, ये स्ट्रक्चर लर्निंग है। आपको स्ट्रक्चर लर्निंग में ये मेरे प्रोग्राम से मैंने हायर किए हुए, तो यहाँ मैं कोर्सेज करूंगा और यहाँ पे मैं एडेक्स पे क्लिक करके सर्च करूंगा, बराबर है। तो ये मुझे यहाँ पे आ गया। दिस इज माय प्रोग्राम। मुझे कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपको यहाँ से शुरू करना है, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स, फ्री है टोटली, बराबर है। अबाउट द कोर्स सब कुछ है, कहाँ चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है, डेली स्टेबल फ्यूजन किस तरह से ये सब काम करता है। सर्टिफिकेट नहीं लेना है, सर्टिफिकेट लोगे तो पैसा देना है, सर्टिफिकेट नहीं लेना है। तो इसी ये बेस्ट प्रोग्राम है। स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। इसमें आपको चैट जीपीटी क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, प्रॉम्प्टिंग किस तरह से की जाती है, ये सब आपको यहाँ से मिलता है, बराबर है। फिर आते हैं दूसरी, एक ये वेबसाइट है, फिर आता है अब एजुकेटर्स। ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे भी आपको लर्निंग, फ्री लर्निंग है, बहुत सारे कोर्सेस है, वो आपको मिलेंगे। फिर है eduaid.ai, वहाँ पे भी आपको ये अलग अलग कोर्स है, अलग अलग टूल्स मिलेंगे आपको कहाँ से शुरू करना है, बराबर उस तरह की इंफॉर्मेशन है। मैजिक टूल्स, रिपोजिटरी ऑफ एआई टूल्स, आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको सुविधाएं मिलेगी, बराबर है। आप ये सब करेंगे आप, तो आपको ये इसके ऊपर ध्यान में देना है, एआई लिटरेसी में, बराबर। तो पहले आपको जो हम लोगों ने कर लिया, आपको अब करने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल्स ऑफ एआई। फिर भी आप जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, टेक इट, भाई बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ एआई। आपको ध्यान ये रखना है कि दे आर ट्रेन ऑन अ पर्टिकुलर डेटा सेट। तो आंसर जो मिलता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ब्लाइंडली आपको उसके ऊपर फॉलो नहीं करना है। फिर डेटा फ्लुएंसी, बराबर है कि भाई जो डेटा आपको मिलता है, मतलब जो आउटपुट मिलता है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई गलत है या सही ही है, बराबर है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फैक्ट चेकिंग, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपको मिलता है उसके ऊपर वो आपको एक डिश दे देता है, फिर आपको खाना है, डाइजेस्ट करना है, सोचना है, प्लस करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये मैजिक नहीं है। ये मैजिक हो रहा है, लेकिन वो सही मैजिक हो रहा है या गलत मैजिक हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसमें से कुछ चीजें आपको रख के उसके ऊपर ही काम करें, क्योंकि रोज एक नया टूल आता है। इसीलिए मैं बहुत सारे टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं और वो मेजॉरिटी पेड टूल्स है, तो पैसा देना पड़ता है। तो उससे अलावा अच्छा है कि ये जितने भी फ्री इंजन है,
लैंग्वेज मॉडल से, उसमें से आप सीख के काम करिए। अपनी प्रॉम्प्ट एबिलिटी है, आपको क्या चाहिए उसके ऊपर काम कीजिए और उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन यू कैन टेक आउटपुट फ्रॉम द चैट बॉट्स। एथिकल इश्यू बहुत सारे हैं, आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, इट्स एन इंडिविजुअल। मेरी पर्सनल थॉट ये है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, एब्सोल्युटली पर्सनल थॉट है। से फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, हमारा जो रिसर्च होता है, आई एम डूइंग अ रिसर्च व्हिच इज मेजॉरिटी इन द लेबोरेटरी वर्क, वी आर डूइंग लेबोरेटरी वर्क। अब मैंने जो काम किया है उसको मुझे साइंस के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना है, वेयर आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ राइटिंग एबिलिटी। जो मेरी राइटिंग एबिलिटी है उसकी मैं हेल्प मशीन से ले रहा हूँ मेरे काम को प्रेजेंट करने के लिए। तो वो एथिकल है नहीं है वो मुझे सोचना है, वो मुझे कौन, मेरा लेबोरेटरी वर्क है वो एआई करके नहीं देगा, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो मैंने करने के बाद दैट वर्क आई हैव टू प्रेजेंट इन अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट वेयर आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ राइटिंग फैसिलिटी ऑफ एआई। तो वो मेरे इंडिविजुअल के ऊपर है, बराबर है कि मुझे लेना है नहीं लेना है, किस तरह से लेना है। सो दैट इज अगेन एथिकल इशू। फिर पेडागोजी, हमें ये पता रहना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि किस जनरेशन के हम लोग हैं, हमें कितनी स्किल अपग्रेडेशन की जरूरत है, कहाँ तक हमें जाना है, क्योंकि सब तो हम कर ही भी नहीं सकते, हमें जरूरत भी नहीं है। तो हमें क्या करना है वो हमें देखना है। एंड देन फ्यूचर ऑफ वर्क्स, एवरीडे सिनेरियो इज चेंजिंग। अभी जो चैट जीपीटी का जो नए मॉडल्स है उसमें से जो पेड वर्जन है उसमें $200 की जो एक कैटेगरी है उसमें एक एजेंट, एआई एजेंट की फैसिलिटी अब इनेबल हो गई है। मतलब आपको एक काम दे देना है उसको, आपको 50 काम दे देना है, तो पूरे महीने भर के अंदर वो 50 काम आपको वो एक सर्वेंट की तरह करके देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से काम है वो ये कर सकता है और किस तरह से कर सकता है, वो उसको आपको बताना है। तो उतनी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, देन यू कैन एबल टू टेक गुड वर्क फ्रॉम द एआई, बराबर। तो ये आपको पता ही नहीं कि मुझे उससे क्या काम लेना है तो उसका कोई मतलब है नहीं, राइट। चैलेंज एंड लिमिटेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये पहले है अनइक्वल एक्सेस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है इसीलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स आर पेड, तो वो एक डिजिटल डिवाइड का एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, बराबर। अब ये जो लेबर इंटेंसिव नेचर ऑफ एआई है वो डेवलपमेंट के लिए, जो लोग डेवलप कर रहे हैं उसके लिए ये है। जियोग्राफिकल डिसपैरिटी वो भी है, कुछ लोगों के पास कुछ जगह पर है टूल्स, कुछ जगह पर नहीं है। कुछ ऐसी फैसिलिटी है एक जोन में इनेबल है एक जोन में नहीं है। से फॉर एग्जांपल CapCut video facility, one of the charming video facility, but which is not available in India. वो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, लोग VPN के थ्रू यूज करते हैं। तो जियोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, बराबर। सम जुडिक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, सम इनेबल है, तो वो जो है वो अगेन क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड। लैक ऑफ रेगुलेशन एंड पॉलिसी ये भी है, कई जगह पे यूज कर दे धड़ाधड़ जा रहा है, कहीं पे उसको स्टॉप कर रहे हैं कि भाई नहीं ये आप नहीं कर सकते हो, बराबर है। तो ये भी है। रिलायंस ऑन डेटा सोर्सेस, जो आप फैसिलिटी एआई की यूज कर रहे हो वो कौन से डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया मॉडल, वो जानना जरूरी है, बराबर है। और फिर डिफरेंट स्किल सेट्स एंड एआई लिटरेसी। अब मुझे थोड़ा ज्यादा पता है तो मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, किसी को नहीं पता है तो वो नहीं कर सकता। तो कितना लर्निंग का कितना है इसमें, तो वो एक अलग है। क्योंकि ये सब चीजें जो है हम लोगों ने अभी तक जो सीखी है उसको एक नए तरीके से सीखने की बात है। अब उसमें हम लोग कितने एडप्ट हो पाते हैं और एडप्ट होके उसको एम्ब्रेस करके कितना जल्दी आउटपुट दे पाते हैं, तो ये चैलेंजेस है। उसकी लिमिटेशंस भी है कि भाई कुछ लोगों के रिफ्लेक्शंस कम हो गए होंगे एक स्टेज के लाइफ के, एक स्टेज पे पहुंच के अब ठीक है अब इतना ही, इससे आगे मैं नहीं जाना है। तो in what context you are accepting this new technology, which is also a question mark, right? अब क्योंकि ये रोज नया आ रहा है तो कितना अपग्रेड अपने आप को करेंगे उसकी भी एक लिमिट है, हमारी भी एक सीखने की लिमिट है, नहीं होनी चाहिए पर
वी आर ह्यूमन बींग्स, तो ये भी एक मायने रखता है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बताया कि आपको एआई में काम करना है तो इसमें ज्यादा समय दीजिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर आपको यूज करनी है, एप्लीकेशंस यूज करनी है, तो यू मस्ट फोकस ऑन दिस एरिया, दैट हाउ you are capable enough to craft a strong prompt which provides you the desired output। आपको जो चाहिए वो आप किस तरह से क्राफ्ट करते हैं वो सीखना है। आपको उसके पास से, एआई के पास से काम किस तरह से लेना है वो आपको आना चाहिए, तो वो आपको सीखना है, वही है बराबर। अब नॉलेज बेस रिक्वायर, अब कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, आपको इसमें आगे जाना चाहिए, तो कितना कितना एआई के लिए लोग को पता है। तो भाई मैथमेटिक्स है, उसमें स्टैटिस्टिक्स है, फिर कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व है, कंप्यूटर विजन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। जो हमारा एरिया, हम लोग जिस एआई में काम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस है, टाइनी एमएल मशीन लर्निंग हार्डवेयर के अंदर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, साइकोलॉजिकल है एंड एथिक्स। तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक मॉडल को डेवलप कर पाते हैं या एक एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं या किसी एक एप्लीकेशन को सही मायने में समझ के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इतनी सारी कंट्रीज है, वो पागल तो है नहीं, उन्होंने तो इनको बैन किया हुआ है because of the security purpose, because they are churning out the data। ये फादर ऑफ द एआई है, वो बोल रहे हैं कि लुक भाई, आप जब जो भी करो सोच समझ के करो। तो ये इनका भी मैसेज है, वो भी हमें देखना है, बराबर है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारी है इसकी, पर साथ में मैंने जो आपको बताया कि आप उसके पास से बहुत अच्छा सा काम भी ले सकते हो। अब इसमें से पूरे 3 घंटे में आपको टेक अवे क्या ले जाना, क्या क्या समझ के पूरे 3 घंटे में आपको क्या क्या समझेंगे, तो ये है भाई दैट इंटेलेक्ट लेबर वर्सेस नॉन इंटेलेक्ट लेबर। बहुत सारे कुछ काम ऐसे है जो लेबर की कैटेगरी में आते हैं, इंटेलेक्ट लेबर में है, तो वहां पे एआई आपको काम कर देता है तो आपको करवाना चाहिए। डेटा एंट्री है, पावर पॉइंट डिजाइनिंग है, तो वो नॉन इंटेलेक्ट वर्क है, बराबर है। तो उसमें आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। जहाँ पे आपकी स्किल नहीं है तो वो स्किल आप एडप्ट कर सकते हैं, आपकी स्किल है वो आप यूज करो, आपके पास नहीं है तो एआई से करवाओ। तो ये आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन रखनी है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू कन्वे। आपको कुछ प्रश्न है, मैंने यहाँ पे 10 मिनट इसलिए स्पेयर रखे कि कुछ भी, मैं 3 घंटे से बोल रहा हूँ, अब आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ पूछना है, तो you are free to do that। Session is open for questions, discussions and कुछ एडिशन आपको करना है तो। Sir, may I? Yeah, please. Yes, sir. It was indeed very amazing session, sir. We have learned very new things in this session. And one thing I just wanted to ask, sir, the dais and the picture of yourself on the dais. How you have managed that, sir? I just wanted to know that. पिक्चर नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं Yes, yes, sir. I got that. But how you have managed that, sir? ये मेरा छोटा सा स्टूडियो मैंने घर पे बनाया हुआ है, वहां से ये आउटपुट है, पूरा स्टूडियो सेटअप है, सब प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप घर पे बनाया हुआ है और उसमें से ये आउटपुट आपको मिल रहा है। Okay, sir. Okay. Very nice, sir. It is. थैंक यू सर। ऐसा लग रहा था पहले कि आपकी हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपने जिस तरह से जो हिंदी लैंग्वेज में पेश किया और जो वर्ड आपने जो लेसन है उसी तरह से प्रेजेंटेशन किया है कि हमको पूरा समझ में आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में आया वही एक चीज है बस। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस एनीथिंग? सर बहुत अच्छा सेशन था। एक्चुअली आपने जो इमेज करवा के दिए अभी बताए हमें चैट जीपीटी में, मैंने अभी ट्राई किया तो सच में वो फ्री मॉडल में भी आ रहा है। हाँ, फ्री मॉडल में आ रहा है। अभी तो ओपन कर दिया इन्होंने। यस, वो
चैट जीपीटी 4o ओपन है ना, ओमनी है, इट्स ओपन फॉर ऑल. So now it's up to your creativity how you can take it. Yes. और आपको अलग अलग फॉर्मेट आप सर्च करें, उसको ही पूछेंगे चैट जीपीटी को कि भाई ये लाइन पेंसिल ड्राइंग है तो अलग कौन कौन से कैटेगरी है जिसमें आप बना सकते हो, तो आपको बताएगा कि अलग अलग क्राफ्ट है, 3D है, फ्यूचरिस्टिक है, सेगुइंग है, बहुत सारे हैं. तो वो आपको बताएगा कि भाई इस तरह से आप इतनी कैटेगरी में मैं बना सकता हूँ. Anyone else? Any other? Sir, it was a wonderful session, sir. 3 घंटा हमारा कैसे गया हमें पता ही नहीं चला. और आगे कुछ बताना चाहते हैं सर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, पर Yes, बहुत yes, कुछ sir. है, बहुत Yes, कुछ है. sir. But to start तो- with, ये सारी चीजें हमें नहीं Yeah. पता थी सर, बट आपने बहुत बेसिक से थोड़ा सा और आगे उसको बढ़ा के हमें अच्छे से समझा दिया विद सिंपल लैंग्वेज. बहुत ज़्यादा टेक्निकली आप नहीं गए, बट हम क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हेट्रोजिनस ग्रुप है तो उतने टेक्निकली साउंड नहीं है, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर. एंड वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल दिस थैंक यू. ऐप जो आपने समझाए हैं. हम बहुत पीछे हैं आपसे तो हमें अभी इसके लाइन में आना होगा. नहीं, एक नहीं, एक आपने ये बोला ना, मैं आपको आप लोगों को एक रेफरेंस देके बंद करता हूँ. यहाँ पे आपको ये सॉरी मैं ये बताना भूल गया, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओपन एआई अकेडमी. ये मस्ट विजिट करें. ओपन एआई एकेडमी जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है बराबर, उसकी अकेडमी उन्होंने फ्री शुरू की है. तो यहाँ पे चैट जीपीटी को चैट जीपीटी में कैसे काम करे, कोई भी चैट बोट में कैसे काम करे, तो दिस इज टू गुड वेबसाइट और प्लेटफॉर्म. तो इसमें आप अकाउंट रजिस्टर कराए तो इसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, बहुत सारे फ्री कोर्सेस है. तो उसमें से आपको पता चलेगा. यू स्टार्ट, आप कहीं ना करें, यहाँ से स्टार्ट करें. ओपन एआई एकेडमी में से बेसिक कोर्स लेके आप आगे जा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. जी सर, जरूर. सो ओके, यहाँ पे रुकते हैं. थैंक यू सर. आपने 3 घंटे का इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया विथ लॉट ऑफ इनपुट्स यू हैव शेयर्ड रिगार्डिंग एआई टूल्स इन एजुकेशन. So I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Jivani sir once again from all of us. Thank you so much sir from all the participants for giving your valuable time and very nice session sir. Thank you so much. थैंक यू. Thank you sir. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी ये सेशन से. हम इसको आगे ज़रूर यूज़ करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. एंड आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन. आप उसको आगे भी, मैं रिकॉर्डिंग पहले सेशन की मैंने शेयर की है, सेकंड सेशन की मैं अभी शेयर करती हूँ. जो आप आगे जैसे आपको फ्री टाइम मिलता है, छुट्टियाँ लगती है, समर वेकेशंस, आप उसमें इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए और नई नई चीज़ें सीखिए. ऐसा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी. आई होप आप लोगों को सेशंस अच्छे लगे होंगे आज के. Yes, ma'am. ओके. मैडम. मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें आज आप लोगों के साथ में सीखी है. तो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, हमें सीखना ही है आगे बहुत सारी चीज़ें. सो हम यहाँ पे रुकते हैं. हम कल मिलते हैं अपने रेगुलर टाइमिंग पे. कल दोनों भी सेशंस अपने नए थीम पे रहेंगे, दैट इज़ इंडियन नॉलेज सिस्टम. तो हम कल भारतीय ज्ञान ओके मैडम. के बारे में सीखेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू ऑल टुमारो एट 2 o'clock. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैडम. थैंक यू. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you. Thank you, madam.